हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। जी.आर. चिंताला साहब हैं, चेयरमैन हैं नाबार्ड के। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर, और आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो एग्री और एग्री अलाइड सेक्टर के लिए जो लोन का जो लक्ष्य तय किया गया था उसे आप लोगों ने सरपास किया है 2021-22 में, और नए साल के लिए अब किस तरह के टारगेट है और उस पर कितना काम चल रहा है सर? For the year 2020-21, 21-22, actually there was a spectacular performance on the part of the banks with regard to the agricultural financing. As against the target of 16.5 lakh crores, all the banking system had given close to around 17.09 lakh crores, which is 104% of the target. And this year, the target Honorable Finance Minister had announced, it's 18.5 lakh crores, and with a kind of a special kind of attention to the animal husbandry and also fisheries. Actually, now these two sectors are getting a prominence and also specific allocation also. So the year 22-23 is going to be around 18.5 lakh crores, and we are very confident the way the agriculture sector is progressing and the way the commodity prices are going up and the way the returns are coming to the farmers, it's going to be a maybe comparatively task which can be achieved. सर, अब अगला सवाल होगा, अगर इंटरेस्ट सबमेंशन के बारे में क्या ब्याज दरों को लेकर कोई रियायत दी जा रही है किसानों को, और किस तरह की रियायत है, और क्या इसे एक्सटेंड करने की भी योजना है इस साल में, नए साल में? ना, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है, दैट इज द प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। तो आज का दिन एक्चुअली हर किसान को 3 लाख रुपए तक 7% में लोन मिलता है बैंकिंग सिस्टम से, कमर्शियल बैंक हो, कोऑपरेटिव हो, आरआरबी हो। और जब एक किसान ऋण वापस करता है टाइमली, उसको 3% प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव मिलता है। सो अभी 4% इज द रियल एंड एक्चुअल कॉस्ट टू द फार्मर्स, बट बहुत सारे स्टेट्स में एक्चुअली दे गिव separate kind of an incentive and it will become almost zero also in some states. तो in that way किसान का वो स्कीम में तो चल ही रहा है। सो मुझे लगता है उनका वजह से थोड़ा एग्रीकल्चर का बढ़ोतरी भी हो रहा है। ओके सर, रूरल फाइनेंसिंग की क्या स्थिति है, करंट स्थिति? वहाँ क्या स्ट्रेस भी है किसी तरह का? बैंक से किस तरह के सेंस मिल रहे हैं, या वहाँ पे जो भी रूरल फाइनेंसिंग में है एनबीएफसीज वगैरह से, वहाँ क्या स्थिति है? रूरल फाइनेंसिंग अगर ये साल देख लिया तो, क्योंकि हम ना केवल क्रॉप लोन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि नाबार्ड का एक अलग सा विंग है, मीन्स एक अंग है एक्चुअली, दैट इज द नॉन फार्म सेक्टर आल्सो। अगर आप देख लिया तो रूरल फाइनेंस में एक क्रॉप लोन वन पार्ट एंड देयर इज ए टर्म लोन इज अनदर पार्ट। अगर वो टर्म लोन का अगर जो नाबार्ड का रिफाइनेंस को भी अगर विश्लेषण किया तो उसमें लगता है दैट वी हैव गिवन टू फार्म मैकेनाइजेशन एंड टू द मिशन द माइन इरिगेशन स्ट्रक्चर्स, ड्रिप इरिगेशन स्ट्रक्चर्स, एनिमल हस्बेंड्री स्ट्रक्चर्स, और उसके साथ साथ ए नॉन फार्म सेक्टर, पर्टिकुलरली ऑल दी स्किल्ड पीपल हु आर taking this one, actually they get this thing. So now all this money, actually if my refinance is a barometer, I'll say that ground level mein quite a lot of things are happening where the artisans and the others also, women are also getting quite a lot of a finance from them. And now the other indicator is this time all the NBFCs and also MFIs and also the small finance banks, besides the normal public sector and private banks, they have churned out a good performance with regard to the rural financing. And that stress, actually what you are telling, actually it was there for quite some time, because last year was bad, but this year actually first quarter there was a stress because of the second wave, but subsequently there is a bounce back. Now we could see that one, that most of the NBFCs and MFIs, their collection efficiency had almost reached the pre-pandemic levels, and everyone actually, the whatever the data we could collect, actually most of them had put a progress of close to around 10 to 15% over the previous years. That indicates that the rural financing had happened, and many other people have come. Stress part, actually we cannot say just now really what exactly this one, but one part I can say that because of the commodity prices going up a bit, now the rural areas are getting more money into their kitties, and that is going to create a new kind of a purchasing power to the rural people, and there's a bounce back of the rural economy. बहुत सारे ऐसे कंप्लेन रूरल एरियाज वगैरह से आते हैं कि उनको लोन मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। इस फ्रंट पर नाबार्ड की कोशिश क्या है, क्योंकि आपका जो डिसबर्समेंट हम देख रहे हैं 2021-22 का, वो रिकॉर्ड लेवल पर है, और रिकॉर्ड लॉन्ग टर्म रीफाइनेंसिंग भी आप लोग कर रहे हैं पूरे ही एग्री और एग्री अलाइड जितने भी सेक्टर्स हैं। तो उस फ्रंट पर क्या आप लोगों की कोशिश है?
ना ये एक्चुअली कंप्लेंट्स का हम नहीं देख सकते, क्योंकि अगर हमने 14 करोड़ लोगों का फार्मर्स को लोन दे रहा है और उसमें सिर्फ ये फार्मर्स का है, व्हाट अबाउट द नॉन फार्म सेक्टर एंड एसएचजीज का, हम एक्चुअली उसका नंबर जोड़ दिया था, ऑलमोस्ट कम से कम 30 करोड़ लोगों को बैंकों से पैसा मिलता होगा। तो उसमें अगर आप देख लिया तो मे बी कंप्लेंट्स कॉमन है, बट एट द सेम टाइम एक्चुअली अगर आप देख लिया तो नाउ आउट ऑफ दिस एंटायर थिंग द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स earlier who were not catered by the formal financial system like banks for a great extent, now actually they are getting close to around 80 to 90% of the small and marginal farmers are getting the institutional assistance and at a very concessional rate. The same thing is with regard to the people who are in this artisan group and also other things. So now banks are giving, but I am not ruling out actually that maybe in some cases there may be some kind of a not getting the money, but that may be the very localized and also person specific, because many times people ask us as to why such kind of things happen and all those things. Actually, if you look into it, many of them might be the defaulters. I'm not saying default is because of willful default, non-willful default, circumstantial default, anything would have happened. But in the process, actually, that there is a kind of a balance has to be stricken by the bankers, because ultimately bankers have to give only to the clients who are credit worthy and who the bankers have got a confidence that the money will come back, and that is how things will happen. सर, आप लोगों की कई सारी स्कीम्स भी चल रही, जैसे पैक्स वगैरह कंप्यूटराइजेशन के जरिए भी आपको, और आप लोग लगातार रूरल एरियाज वगैरह में जाते हैं, आप पर्सनली भी कई जगहों पे विजिट करते हैं, न्यूज़ के जरिए ऐसा हमें पता लगता है। तो किस तरह की वहाँ पर डेवलपमेंट है, किस तरह की डिमांड है, ग्राउंड पर क्या दिक्कतें हैं, और बैंक से किस तरह के सेंस आप लोगों को मिलते हैं? ये आत्मनिर्भर भारत, एक्चुअली हम बोलते हैं तो पूरा भारत देश इंडिपेंडेंस के आने के बाद आई थिंक द वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड स्लोगन हमने सुना है, क्योंकि हम भी 30 साल से बैंक में हैं। ये आत्मनिर्भर भारत एक बहुत बढ़िया प्रोफाउंड स्लोगन है, और उसके जरिए एक्चुअली बहुत सा काम भी हो रहा है एक्चुअली उसमें। तो क्योंकि आप देख लीजिए आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये बैंकों का पैसा लिक्विडिटी देने का एक कोशिश किया था फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिजर्व बैंक के माध्यम से, और नाबार्ड को और सीडबी सबको दिया था। एक्चुअली नाबार्ड को अगर लास्ट ईयर 30,000 करोड़ दिया था और इस साल 25,000 करोड़ दिया था, हमने सबको बांट लिया। उसका वजह से रूरल इंस्टीट्यूशंस में बहुत सा लिक्विडिटी का इंप्रूवमेंट हो गया। इसके साथ साथ एक्चुअली नाबार्ड जैसा इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली कोऑपरेटिव्स और रूरल रीजनल रूरल बैंक्स को ज्यादा से ज्यादा पैसा देने का कोशिश किया। एक्चुअली आप हमारा आंकड़ा देख लिया तो बहुत सा पैसा हमने दिया था। पिछले जब पैंडेमिक का शुरू होने का पहले हम 17,000 करोड़ देता था, तो अभी एक्चुअली 1,52,000 हो गया था एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट का। लाइकवाइज द लॉन्ग टर्म क्रेडिट आल्सो फ्रॉम ऑलमोस्ट 78,000 crores इट वेंट अप टू 1,16,000 crores। सो ये एक पल्लू है। और मोरओवर अगर आपने पूरा नेशन का आंकड़ा देख लिया तो 17.06 लाख crores में 60% हैज गॉन टू क्रॉप लोन और 40% हैज गॉन टू द टर्म लोन्स। टर्म लोन्स मींस ना फार्म मैकेनाइजेशन, ट्रैक्टर खरीदने का, और मे बी द माइनर इरिगेशन सेट्स खरीदना, सोलराइजेशन का, गाय भैंस बकरी खरीदने के सबका है। और नाबार्ड का भी अगर आप देख लिया तो नाबार्ड रिफाइनेंस भी ऑलमोस्ट द सिमिलर काइंड ऑफ प्रोपोर्शन में जाता है, 43% टू द टर्म लोन्स एंड 57% टू द क्रॉप लोन। और इससे हम एक ही काम कर रहा है, क्योंकि कोऑपरेटिव्स और आरआरबीज को अपना परसेंटेज शेयर का ऐसा ही रखने का हम कोशिश कर रहे हैं। उसका वजह से दे आर वेरी रिलेवेंट टू दैट रूरल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम। सो दे आर हेल्पिंग देम अ लॉट। ओके, शुक्रिया। उसके साथ टैक्स कंप्यूटेशन हम कर रहे हैं। जी जी, शुक्रिया सर, ऑल द बेस्ट। नए साल के लिए भी इसी तरह से आप अपने फाइनेंसिंग का दायरा बढ़ाएं।